Good evening, class. As recording has been started, please mark your attendance in the chat box with your name, location, and standard. I'm going to present the screen. Yes, today I will teach you mathematics. Yes, this is the class of class 5, class 6, and class 7, right? So we will teach you around 15 minutes each class, right? So basically in class 5, the topic is I will teach you today first chapter. The first chapter of class 5 is related to number, right? Means ये क्लास 5 की जो चैप्टर है वो नंबर से रिलेटेड है इन विच यू विल बी familiar, yes, you will be familiar with the shape, addition, subtraction, multiplication, how to measure a thing, right? So this is for class 5. तो ये कहानी जैसा ये आपके बुक में दिया गया है दैट वी विल डिस्कस फॉर द क्लास 6 वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम, राइट? इसमें भी हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें वी विल स्टडी अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, ascending order, descending order, right? etc. And many more things like मिलियन कैसे लिखते हैं, ट्रिलियन कैसे लिखते हैं, right? These things we will discuss for the sixth class. And the first chapter of class 7 is integer, right? The first chapter of class 7 is integer. So all three chapters are related to each other, right? So I am going to start with the class 5, fifth. Yes. So when you see the NCERT textbook of the class 5, तो आपको एक ऐसा काफी attractive book दिखेगा. Those who have not book, they can download from the official NCERT website. NCERT की official website पे जितने भी बुक है वो सारी बुक्स की PDF अवेलेबल है, राइट? NCERT की वेबसाइट पे you can download from NCERT website. Okay, this is the first topic of class 5th. ये class 5 का पहला चैप्टर है. As I told earlier that I will teach 15 minutes for class 5, 15 minutes for class 6 and 15 minutes class 7. And the rest 15 minutes we will discuss as question and answer session, right? So let us go on live board. तो हम नंबर को समझने के लिए हम लोग फिशरमैन बनते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बोट, दिस इज बोट. ये क्या है? बोट. लेट मी ड्रॉ अ अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ बोट so that you will understand in a better manner.
सो आई एम ड्रॉइंग अ बोट ओवर एयर, मैं एक बोट बना रहा हूँ, राइट। सो ये आपको एक बोट जैसा दिख रहा है, रफली दिस लुक्स लाइक अ बोट। So this looks like a boat. Can anybody tell which shape is this boat? ये इस बोट कौन सी शेप में है? तो अगर मैथ में पढ़े होगे तो दिस इज लाइक ट्रेपेजियम। ये क्या है? दिस इज ट्रेपेजियम। यस, yes, everyone mark their attendance in the chat box so that I can understand how many students uh, from each class are present here. Write your name, location, and class in the chat box. So this is what? This is trapezium. Okay. तो बोट को चलने के लिए हम इसके ऊपर में क्या करते हैं? एक ऐसा लगाते हैं जो कि विंड की डायरेक्शन अगर इधर है तो हमारी बोट किधर जाएगी? इस साइड, राइट। तो ऊपर में मैंने जो फिगर लगाया उसे हम क्या बोलेंगे? इस फिगर को we will called as triangle, right? ट्राइंगल। ट्राइंगल हम किसे कहते हैं? कुछ ऐसी जो शेप होती है जिसमें थ्री साइड्स होते हैं एंड थ्री वर्टेक्स, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल। एंड ये जो मैंने बोट बनाया, यहाँ पे दो पैरेलल साइड, क्लास 5 के लोग फिलहाल पैरेलल क्या होती है वो नहीं समझेंगे। उसे समझाने के लिए जैसे मैं बोलता हूँ, ये रेल की ट्रैक है, राइट। रेल की ट्रैक है, तो रेल की ट्रैक की जो होती है उसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। आप कहीं भी चले जाओ एंड व्हेन यू मेजर द दिस डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे ट्रैक, दैट विल बी सेम फॉर ईच मेजरमेंट। ओके। और इसे मैंने मिलाया तो रफली हमारा क्या बन गया? बोट बन गया, राइट। सो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, राइट। So this figure is called as trapezium. So as you told earlier that today we will learn addition, subtraction, multiplication. We will discuss about some shapes, measurement, and how to measure weight. Yes. So अभी तक हमने शेप के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं, ये बोट को लेकर के हम चलते हैं सी में, राइट। सो ये फिशरमैन अपने साथ दो लोग को ले जाना चाहते हैं सी में फिश को कैच करने के लिए, राइट। एंड लेट अस सपोज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस बोट इज 100 केजी, 150 केजी। कोई जैसे आप लिफ्ट में चढ़ते होगे, लिफ्ट में तो वहां पे नो, नोटिस बोर्ड जैसा लिख लिख वहां पे आप देखते होगे कि 8% लिखा रहता है, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट। तो अगर उससे ज्यादा आदमी उस पर आ जाएंगे तो शायद वो डैमेज हो सकता है, राइट। तो सिमिलरली द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस बोट इज 150 kg, राइट। सो यस, तो ये बोट से कहाँ पे जा रहे हैं? बोट से सी में जा रहे हैं और इन्हें कुछ फिश कैच करनी है, राइट। सो सपोज द वेट ऑफ ए इज 50 kg and the weight of B is 60 kg, राइट। दो लोग इस पे सी में जा रहे हैं फिश को कैच करने के लिए। ए का वेट 50 kg है एंड द वेट ऑफ बी इज 60 kg।
सो आप मुझे चैट बॉक्स में यह बताइए कि हाउ मच फिश दे कैन कैरी, हाउ मच फिश दे कैन कैरी। चूंकि since the capacity of this boat is 150 kg, then please tell how much fish they can carry back. 110 kg। आ, आपने सभी लोग अटेंडेंस नहीं बनाए तो मुझे हरी, ओके हरकिरत, ओके क्लास 6, वेरी गुड। आपने आंसर किया 110, ओके लेट अस सी। हाँ, हाउ मच फिश दे कैन कैरी। तो यहाँ पे there are 3 answer in the chat box. All answer are 110 kg. Let us see. Right, this is very interesting. तो इस बोट की वेट कितनी है? सॉरी, बोट कैन कैरी 150 kg, राइट। 40 kg है, कुछ अलग आंसर आया, लेट अस सी। तो ए और बी का अगर हम वेट ऐड करें, इफ वी ऐड 50 kg plus 60 kg, then it will be 110 kg, right? मीन्स ये दो लोग जब इस बोट पे बैठे तो 110 kg तो ऑलरेडी ये यहाँ पे आ गया, राइट। 110 kg इस बोट पे आ गया। और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी इज 150 kg। सो 110 kg इन दोनों आदमी का वेट है, इन दोनों फिशरमैन का, ओके। तो 110 में आप 40 ऐड करोगे तो इट विल बी 150 kg। सो दे कैन कैरी ओनली 40 kg ऑफ फिश। दे कैन कैरी ओनली 40 kg ऑफ फिश, राइट। They can carry only 40 kg of fish because the net capacity of the boat is 150 kg and the weight of the two fishermen A and B is 110 kg. Okay, so only 40 kg is remaining. Okay, अगर ये 50 kg अगर फिश इस पे डाल दें, ओके, इफ ये 50 केजी ये डाल देंगे तो शायद ये बोट क्या होगा, ये सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी, राइट, और इट में डैमेज। ओके, सो अभी हमने क्या देखा? फ्रॉम दिस एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी लर्न एडिशन, वी लर्न एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्शन, राइट। मीन्स यहाँ पे 150 माइनस 110 आप करोगे, इट विल बी 40 kg, it will be 40 kg, right? So let us see another example. So before going to another example, let us visit your book. So this fish is called as shark. If you visited the fish market, then probably you may see these type of fish, right? The biggest fish is the whale shark, right? It is actually not a whale, but it is a big fish. हाँ, एक्चुअली जो सबसे बिगेस्ट फिश होती है यहाँ पे वेल शार्क को बताया गया है, जो कि शार्क शार्क को हम वेल नहीं कहते हैं बिकॉज वेल जो फिश होती है दे ब्रेथ
they take breathe from their nose, right? So यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के पोर्शन पे आते हैं. अभी तक आपने अटेंडेंस अपने चैट बॉक्स में, यू हैव नॉट put your attendance in the chat box so that I can clearly understand that how. Okay, 1 2 3 4, yes, okay, okay. Anyone from class 6 over here? यहाँ पे कोई क्लास 6 के हैं क्या? आंसर क्लास 7 के हैं. ओके. श्रेयांशी क्लास 5 एंड हरकिरत क्लास 5. Harpreet class 5. I think no one from class 6. So we will discuss the topic of class. Okay, there is also a student of class 6. Okay, I think you. Okay, Abneet Kaur. Okay, okay, yes, very good. Yes. So let us come to this example. One whale shark was as long as 18 मीटर. एक शार्क की लंबाई 18 मीटर की हो सकती है, राइट? Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. And guess what is the weighted, right? So आप मुझे बताओ कि the length of one shark, right? One shark की लेंथ क्या होती है? मीन्स एक छोटा सा शार्क किसी फिशरमैन ने पकड़ा या देखा, उसकी लेंथ है 10 मीटर, राइट? 10 मीटर. और आपकी, या क्लास 5 में हो तो आपकी अभी हाइट मानते हैं कि योर हाइट इज 1 मीटर, राइट? तो ये एक बड़ी सी शार्क फिश है. ये एक बड़ी सी क्या है? शार्क फिश, राइट? ये उसकी फिन्स है, राइट? दिस इज शार्क. इसकी लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ दिस शार्क इज 10 मीटर, राइट? सो और आपकी लेंथ कितनी है? योर हाइट इज 1 मीटर, राइट? सो यहाँ पे आपके जैसे 10 बच्चे, मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ऐसे करके 10 स्टूडेंट का हाइट को जब हम कंबाइन करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन शार्क. मीन्स आप 1 मीटर के हो और आपके जैसे 10 बच्चे और आएंगे जिनका हाइट 1 मीटर होगा, देन दे विल इक्वल टू 10 मीटर, राइट? या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ऐसे करके 10 टाइम्स लिखेंगे. तो 1 को व्हेन वी ऐड 1 10 टाइम्स इट विल इक्वल टू 10 मीटर, राइट? So it is right now it is 6:21. Okay, so I am going to start the topic of class 6. So for class 5 we learn today about addition. We see subtraction with the help of example.
राइट. वी सी मल्टीप्लीकेशन, हमने मल्टीप्लीकेशन देखा. वी लर्न अबाउट शेप. शेप कौन कौन सा देखा? ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम. वी लर्न अबाउट मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होती है? जैसे अगर आप ग्रोसरी के शॉप पे जाते हो और आपके पेरेंट्स बोलते हैं 1 kg पोटैटो लाने हैं. ओके, पोटैटो, यू हैव टू, POTATO, यू हैव टू बाय 1 kg ऑफ पोटैटो. आपकी मम्मी बोली कि जाओ शॉप से 1 kg पोटैटो परचेस करके लाओ. और आप शॉप पे गए और भूल गए कि मुझे कितना केजी परचेस करने के लिए कहा गया. तो आप सिर्फ शॉपकीपर को बोलोगे मुझे पोटैटो चाहिए, पोटैटो चाहिए. ओके, तो वो उन्हें कितना देना है, 1/2 kg, 1 kg, 2 kg, इट इज नॉट क्लियर. सो यू हैव टू से दैट I want 1 kg of potato. So this is what? This is measurement. Okay, measurement. तो वो दुकान वाले अंकल क्या करेंगे? वो जो बैलेंस पे वो पोटैटो को डालेंगे. राइट. जब यहाँ पे 1 kg लिखेगा तो वो आपको कैरी बैग में पोटैटो दे देंगे. फिर यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया? मेजरमेंट किया मशीन की मदद से. राइट. सो these things we learn today. In next class, we will discuss these things with the help of another example. Right. So that's all for class 5. अभी हम क्लास 6 के टॉपिक पे चलते हैं और यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बुक का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ क्लास 6. ओके, क्लास 5 के भी लोग टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा बिकॉज यू हैव टू रीड दिस चैप्टर आफ्टर 1 year. ओके, and this chapter is related to numbers, knowing our number. Right. So many thousands year ago people knew only a small number. Right. बहुत साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत कम नंबर को जानते थे. राइट. ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर. ओके, सो इस टॉपिक में बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले हैं नोइंग योर नंबर में. यस, यहाँ पे हम वी विल अंडरस्टैंड कंपैरिजन. राइट. देन वी विल, कंपैरिजन में क्या आ जाता है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. होप आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ा होगा. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. राइट. दिस थिंग वी विल डिस्कस टुडे. सो So the topic of class 6 is knowing the number. आपको नंबर के बारे में जानने हैं. राइट. knowing the numbers. This is the topic. Yes. So पहले के समय में जब ये नंबर नहीं था, जैसे अभी आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं डिजिट. राइट. दीज आर डिजिट.
digit. When we combine two digit, like if we combine 2 and 4 like this, then it will become number. It will become number, right? uh, let us take an another example. आप ABCD नर्सरी में याद किए होंगे, ABCD. Ascending means smaller to bigger and descending means very good. We will also come to the ascending and descending. So A से Z तक आपने काफी मेहनत से याद किया होगा. So this is called as alphabet, right? Or when we combine two alphabet, like जैसे हमने नंबर में कोई भी रेंडमली दो नंबर को कंबाइन कर दिया, जैसे 2 5 2 6 कोई भी, बट यहाँ पे हम दो नंबर को कंबाइन नहीं करेंगे. लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक अल्फाबेट ए, सेकेंड इज डी एंड थर्ड इज डी, मीन्स एड, मीन्स एडिशन. तो यहाँ पे क्या ये बन गया, ये एक वर्ड है, राइट? तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में देखते हैं 0 to 9 जिसे आप डिजिट बोलते हो, 0 to 9 जिसे आप डिजिट बोलते हो, एंड व्हेन यू कंबाइन टू डिजिट देन इट इज कॉल्ड एज नंबर. ओके, सो एंड इसे आप इंग्लिश अल्फाबेट की मदद से भी समझ सकते हो. ABCD to Z is called as alphabet, and when some alphabet combine they forms the word, right? ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोला, ओके, कि ऐसा होता है. So let us see an example. पहले के समय में क्या होता था कि लोगों के पास नंबर नहीं थे, राइट? आपने जनरल नॉलेज की बुक में पढ़ा होगा कि शून्य का आविष्कार किसने किया? इंडिया ने किया, राइट? इंडिया में ये किसने, ऐसा काम किसने किया? आर्यभट्ट, द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, राइट? इन्होंने वर्ल्ड को क्या दिया? जीरो दिया. ओके, यस. तो पहले के टाइम में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर के पास, इफ एक फार्मर के पास 5 बफेलो है, राइट? एक फार्मर है, फार्मर के पास 5 बफेलो है, राइट? उन्हें काउंटिंग तो आती नहीं थी, 1 2 3 4 उन्हें आती नहीं थी, राइट? तो वो क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बफेलो का रहने का जगह है, तो 5 बफेलो है, सबका मैं नाम देता हूँ. फर्स्ट बफेलो इज B1, सेकेंड बफेलो इज B2, थर्ड इज B3, फोर्थ इज B4 एंड फिफ्थ इज B5. ये 5 बफेलो है. अ फार्मर हैव 5 बफेलो. ओके, तो आपने कभी बफेलो देखा होगा कभी गांव वगैरह सब में, तो फार्मर क्या करते हैं, उन्हें बांध करके रखते हैं, राइट? एक लकड़ी का रहता है जिसमें वो उन्हें बांध करके रखते हैं, राइट? उन्हें वो बांध करके रखते हैं. तो वो फार्मर क्या करते थे, यहाँ पे 1 बफेलो के लिए सपोज B1 बफेलो यहाँ पे रहती है, B2 यहाँ पे है, B3 बफेलो टाइड ओवर हेयर, B4 इज टाइड ओवर हेयर एंड B5 को यहाँ पे बांधा गया है, राइट? सो लेट अस सपोज एक दिन ये फार्मर बफेलो को ग्रेज करने के लिए ले गए और ये B5 क्या हो गया, ये छूट गया कहीं पे, उधर ही एग्रीकल्चर फील्ड में ही रह गया, भटक गया, राइट? सो शाम में जब ये आया
और ये सभी बफेलो को अलग अलग जगह पे जब इन्होंने बांधा तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये वाले ये वाली जो बफेलो थी वो बफेलो क्या है, गायब है, राइट। ये बफेलो क्या है, गायब है, राइट। सो इस तरीके से पुराने समय में काउंटिंग होती थी, राइट। काउंटिंग ये कब कब की बात है, ये ओल्ड टाइम्स की है, जब गिनती नहीं आती थी। तो अभी तक मैंने जो बताया क्या आप समझ पाए क्या? इफ यू अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी डॉट और क्वेरी यू कैन आस्क। ओके, यस। अगर किसी को कुछ सवाल पूछने होंगे देन आपको अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करना होगा। मैं आपका माइक ऑन करूंगा, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। चूंकि अभी ये क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, सो अभी हम आपका माइक को अनम्यूट पे रखते हैं, राइट। ओके, सो किसी को कुछ पूछना नहीं है बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। So now we will discuss comparing the numbers, right? So अभी हम पढ़ने वाले हैं comparing the numbers। नंबर की कंपेयर करना। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्लास फिफ्थ में जब आप थे, when you were in class fifth, you get 82% marks, okay। एंड इन क्लास सिक्स में जब आप आए तो आपका पहला एग्जाम हुआ तो आपको क्या मिला, 90%, ओके। 82% में आपके मार्क्स थे 82 और ये 90। ये किसकी मार्क्स है, मैथ सब्जेक्ट की, राइट। सो आप आसानी से बता सकते हो कि इन क्लास सिक्स वी गेट मोर मार्क एज कंपेयर टू क्लास फाइव, ओके। क्लास फाइव से आपने 8 मीन्स यहाँ पे 82 प्लस 8 इज इक्वल टू 90, मीन्स यू गेट 8 मोर मार्क्स इन क्लास सिक्स, ओके। सो यहाँ पे हम कंपेयरिंग द नंबर पढ़ेंगे। सो एक मैं आपसे पूछता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज 396 4873 9498 03347। So tell me the greatest number। यहाँ पे आप मुझे ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे कौन सी नंबर ग्रेटेस्ट है, यू हैव टू टेल। 396 4873 9498 एंड 03347। ग्रेटेस्ट नंबर हम उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी होती है, और लार्जेस्ट नंबर बोल सकते हो। लोएस्ट नंबर हम उसे कहते हैं जो नंबर सबसे छोटी होती है, राइट। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर आया 9498। सो वेरी गुड, 9498 इज द हाईएस्ट, मीन्स ये लार्जेस्ट है। क्यों लार्जेस्ट है, क्योंकि ये 9, इसे जब आप हम ब्रेक करना मैं आपको सिखाऊंगा तो ये क्या होगी, 9000 प्लस 400 प्लस 90 प्लस 8, राइट। अगर मैं
हाँ, और यहाँ पे आप बताएं कि सबसे छोटी नंबर कौन सी है आउट ऑफ these फोर, 396, 4873, 9498 and 03347. Which one is the smallest? So there is three answer in the chat box, 3, 9 and 6. Very good. And agar, and if we put a zero before the 396, अब मैंने क्या किया, 396 के पहले एक जीरो यहाँ पे डाल दिया. I put a zero before 396. Then tell the smallest number. अब आप बताइए कि smallest number कौन सी है. The first answer in the chat box is 0396. Second is also 0396. Very good. Okay. So अगर आप कोई भी नंबर के पहले जीरो ऐड करते हो तो वहां पे नो चेंज होती है. ओके. इफ वी ऐड जीरो जीरो बिफोर अ नंबर, before a number, then there will be no change. उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगी. राइट. नाउ लेट अस understand what is ascending and what is descending. Right. Ascending and descending. Ascending को मैं पहले लिखता हूं स्मॉल, smaller to larger, and descending is what, larger to smaller. Right. ये क्या स्मॉलर टू लार्जर है और लार्जर टू स्मॉलर है, ये अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस सपोज कि आपके रोप पे चढ़ने के लिए सीढ़ी है. दिस इज अ लैडर. ओके. ये क्या है, लैडर. जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, राइट, नीचे से जब आप ऊपर जाओगे मीन्स स्मॉलर टू लार्जर, देन इट इज असेंडिंग. ओके. और जब आप ऊपर से नीचे आओगे देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग. राइट. वेरी गुड. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. 3864, 3864, 2847, 9438. Right. So arrange this one in ascending order. इसे आप ascending order में arrange करके बताइए. So what you will do, क्योंकि अभी आप करोगे तो then you have a type a little bit more in the chat box. So I am telling the answer. मुझे मालूम है कि आप लोग बता दोगे because you know. ओके. तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस चैप्टर्स में भी आपको यह बताया जाएगा, यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, 100 एंड 1000. ओके. अगर मैं आपसे पूछूं कि which one is the largest, then you will simply told 9438 is the largest. Right. And which one is smallest? 2847 is the smallest. बट ये कैसे होता है? राइट. ये कैसे होता है, क्यों होता है? These things we will discuss in the next class. Right. अगले क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. अभी तक मैंने जो बताया होगा आपको, प्रोबेबली यू नो दीज थिंग्स अर्लियर, पहले से ही आप ये सारी चीजें जानते होंगे. ओके. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं 1/2, 3/5, 7/4,
इससे आप इसमें बताओ कि विच वन इज द लार्जेस्ट, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, एंड also arrange this one in ascending order and descending order. So probably you may get confused or it may take time. Okay, so we will learn these things in the next class. So it is 6:42, so I am going to start the topic of class 7. As I told earlier that the topic of class 5 is number, the topic of class 6 is also number, and topic of class 7 is integer, right? So अब हम देखते हैं कि नंबर से इंटीजर कैसे आया. Okay, I request to the student of class 5 and 6 also to pay the attention on the topic. क्लास 5 और 6 के भी स्टूडेंट इस टॉपिक पे आप अटेंशन दीजिए. So the topic is integer. Okay, topic is integer. So what is integer? Integer हम कहते किसे हैं? Okay, yes. So इससे पहले आपने यह देखा होगा, सॉरी, integer. Okay, the topic is integer. अभी हम देखते हैं कि जितनी भी नंबर होती है, लेट अस टेक अ नंबर लाइन, लेट अस टेक अ नंबर लाइन, राइट. ये क्या है? एक नंबर लाइन है. ओके, the group of natural number, whole number and negative number is called integer. Very good, very good. Okay, so यहाँ पे आप अभी कहाँ पर हो? Let us suppose yes, अभी आप यहाँ पे मुंबई में हो. ओके, दिस इज मुंबई और ये क्या है? दिस इज पुणे एंड दिस इज भोपाल. ओके, तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि अगर मैं 120 किलोमीटर, अगर मैं, आप एक गाड़ी से अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट? तो इफ यू गो 120 किलोमीटर देन यू विल रीच पुणे, राइट? एंड सिमिलरली इफ यू गो -500 किलोमीटर देन यू विल रीच टू भोपाल. ओके, पर डिस्टेंस यहाँ पे प्लस और माइनस क्या बताई गई है? प्लस का मतलब जो कि आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज प्लस. और आपकी गाड़ी को अब पीछे जाने के लिए क्या करना होगा? ये टर्न लेना पड़ेगा, राइट? सो ये चूंकि बैक में है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज निगेटिव. और आप यहाँ पे मुंबई में है तो इसे हम क्या कर रहे हैं? जीरो कंसीडर कर रहे हैं, राइट? मीन्स व्हेन यू ट्रेवल 0 प्लस 120 किलोमीटर देन यू विल रीच पुणे. चूंकि आप भोपाल से मुंबई आ गए हो, फिर आपको वापस जाने के लिए यू हैव टू ट्रेवल 500 किलोमीटर बैक so that you can reach to भोपाल. ओके, सो अभी हम इसे भूल जाते हैं. ओके, अब हम एक दूसरा नंबर लाइन लेते हैं. ओके, हाँ, थोड़ा सा मैं ठीक कर दिया नंबर लाइन को सो दैट यू कैन सी दिस क्लियरली. सो दिस इज अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पे मैं कहीं यहाँ पे जीरो लिया, जीरो के बाद आप वन काउंट करते हो, वन के बाद टू, ऐसे ही थ्री, और फिर जीरो से जब हम बैक में जाते हैं तो ये क्या आती है? नेगेटिव, -2, -3. ओके, सो ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये नंबर है, राइट? दीज आर नंबर. तो नंबर का अभी हम क्लासिफिकेशन अभी हम देखने वाले हैं. वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. नंबर को हम पहले क्या
नंबर को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन, राइट। Number can be divided as integer and fraction. So what is fraction? Suppose ये क्या है, 0 to 1. ओके, लेट अस सपोज एक टॉफी है और आप दो भाई बहन हो, राइट, और दोनों को ये टॉफी खाना है, तो आधा आप लोगे और आधा अपने भाई को दोगे, राइट, मीन्स हाफ एंड हाफ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। वी विल डिस्कस फ्रैक्शन लेटर इन वेरी डिटेल्स। और भी जो भी नंबर है जैसे 1 2 3 4, -1 0 टू द इंफिनिटी, मीन्स अनंत तक, इनफाइनाइट तक, इधर भी माइनस इंफिनिटी। ओके, जो भी हम काउंट करते हैं उसकी वो मीन्स अंत तक वो जाते जाता है, राइट। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। सो फॉर नाउ यू हैव टू फॉरगेट व्हाट इज फ्रैक्शन। अभी आपको भूल जाना है कि फ्रैक्शन क्या है। अभी हम इंटीजर को आगे क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर कैन बी क्लासिफाइड एज निगेटिव नंबर, निगेटिव को माइनस भी मैंने लिखा है, फिर 0, और फिर पॉजिटिव नंबर। प्लस बीई का मतलब मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, NO डॉट मीन्स नंबर। और पॉजिटिव नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, राइट। पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड एज, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। चूंकि ये इंटीजर से आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव के बाद हम क्या लगाएंगे, इंटीजर, राइट। यहाँ पे नंबर लिखना पॉजिटिव इंटीजर, ओके। एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव integer, right? So integer can be classified, sir, a dot in a number if there is minus symbol, -3. हाँ, मैं बताता हूँ, आपका डॉट में क्लियर करता हूँ, वेरी गुड। हाँ, पहले हम ये टेबल को समझ लेते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। यस, सो हमने लिया नंबर। नंबर में कोई भी चीज आ सकती है, -1, 1.5, ओके, 100, 2000, कुछ भी, ओके। इससे और भी लार्ज क्लासिफिकेशन हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। फिर इससे भी मीन्स जैसे आप रेशनल नंबर पढ़ोगे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ओके। दिस 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 टॉपिक विल कम अप टू क्लास 11। क्लास 11 तक ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ओके। सो नंबर को हमने डिवाइड किया इंटीजर में और फ्रैक्शन में। इंटीजर को हमने डिवाइड किया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब यहाँ से पहले, ये 0 से जो पहले होती है ये क्या हो गई, नेगेटिव इंटीजर, ओके। फिर यहाँ पे 0, दिस इज 0, एंड 0 के बाद जो भी नंबर आएगी दैट इज पॉजिटिव नंबर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज natural number. In next class we will discuss about what is even number, what is odd number, what is prime number, what is composite number, okay. So this is, since this is introductory class, that's why I am giving some basic concepts, okay. So ये टेबल आप लोग समझ पाए क्या? If you able to understand this table, then type yes in the chat box. And if you have any question, then please type your name so that I can unmute you. Okay, very good. Yes. So यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन में बता देता हूँ कि सर अ डॉट इन अ नंबर इफ देयर इज अ, सो लेट अस सपोज आपके पास you have 5 rupees, okay, you have 5 rupees, okay.
आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं, राइट। एंड यू वांट टू परचेज अ पेन, यू वांट टू परचेज अ पेन ऑफ ₹20, राइट। सो हाउ मच मोर मनी यू विल नीड? आपके पास 5 रुपए हैं और 20 रुपीज का आप पेन परचेज करने चाहते हो, तो यू रिक्वायर ₹15 मोर। ओके, ये आपके पास ₹5 है। अभी आप क्या ये 5 रुपए आपके पास है आइसक्रीम खाने के लिए था, बट आपको एक पेन पसंद आ गया, तो आप सोच रहे हो कि ये पेन में ₹20 का परचेज कर लूं। ओके, सो आपने क्या किया, आपने एक फ्रेंड को बोला कि तुम मुझे ₹15 दे दो, सो डैट मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? ₹20, एंड आई विल बाय दिस पेन। ओके, तो आपने अपने फ्रेंड से क्या लिया? ₹15 लिया, और आप ये पेन परचेज कर लिए। तो अभी आपके पास कितने पैसे हैं? आपके पास तो जीरो तो हो ही गया, राइट। उसके बाद ये -15 मीन्स ये आपने ₹15 लोन के तौर पे लिया। ओके, लोन के तौर पे आप लिया, मीन्स आपके पास अभी, मीन्स आप -15 में हो। जब आपके पेरेंट्स जब ₹15 देंगे, तो आप क्या करोगे? तुरंत वो ₹15 अपने फ्रेंड को दे दोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव। ओके, सो होप आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा बहुत। So it is 6:53. With this note, I am going to wrap up today's class. If you have any question, you can ask in the chat box. Otherwise, uh, I'm going to end today's class. In next class, we will proceed from the topic that means आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, उसके बाद की जो टॉपिक होगी वो हम पढ़ेंगे क्लास 5 के लिए। आई विल टेक सम अनदर एग्जाम्पल। क्लास 6 के लिए हम पढ़ेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, और भी बहुत सारी क्लास 6 में है, जैसे रोमन में कैसे लिखा जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अ, हाँ, 1 लाख को मिलियन में कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, एंड इन क्लास 7 में हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन के बारे में। मीन्स वी विल learn about integer, how we will add integer, how we can subtract the integer. Okay, and we will also study unitary method. Okay, unitary method जो कि क्लास 5 में भी है, क्लास 7 में भी है, right? So in next class we will proceed further. So very good. 1 million, 10 lakh is equal to 1 million is equal to 10 lakh. Okay, so ये सारी चीजें हम देखेंगे। Okay, so I am going to stop the presentation. If you have yes, class is over for today. Thank you for joining. अगर आपको कुछ पूछना है, then you can ask. We have still 4 minutes left. Otherwise, you can leave the class. The recording of this class will be available on the YouTube, and we will soon share the link of recorded class in the respective group. Okay, जो भी क्लासेस हमारी होती है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, और उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाला जाता है, जो लिंक आपके ग्रुप में डाला जाएगा, राइट। सो यू कैन वॉच these videos again on YouTube for the revision purpose, right?
So please leave the class. It is 6:57. We will meet in next class with the same topic. Thank you.